नेक्स्ट पे डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज करना है। पोस्टिंग नवीन। पोस्टिंग से तो ये नंबर रेंज फिर पोस्टिंग करनी है। SPRO, SAP reference IMG, financial accounting new, global settings. no, financial accounting global settings, yes. Document. Here we will see document type and here we will see document number range. Okay. So first I expand document type. Define document type for entry view. Define document type for entry view. Define document type for entry view. ये ओपन करें आप। Now we will see all the document types here. Double A is asset posting. For posting of assets, we use this double A document. AB accounting document. It is for reversal purpose. You can see. Reverse document type is AB. Then account type allowed for reverse a document, reverse a posting for which transaction? Detail. Double click. Detail. Detail. For which transaction? For how many transactions? Or which type of transaction we can reverse? It is showing here. Asset posting also we can reverse. Customer account, vendor account, material account, general ledger account. मतलब सेल्स परचेस दोनों भी इसमें रिवर्स होता है। हाँ, all this posting we can do with this AB. Then next, DA customer document, DG customer credit memo, DR customer invoice, DZ customer payment. So customer invoice and customer payment. Customer invoice first. Detail. The document number range is 18. So in our company code, we have to make number range in 18th number. By using 18th number, we have to make it number range. So then, with this ID number, it starts picking up document numbers from that range. Document type is DR. Again, same posting for all. Now we have to go with SA general ledger, SA general document. Again, detail number range is 01. Reverse document will be AB, and again posting will be done with this all. So this is document type. Now we have to go with the document number range. From here, number range. Define document in entry view. Define document number range for entry view. For SA, what I said number range 01. 0. So we have to make that 01 first. Entry view. Here I click. Then company code TEMV. Global settings. Display interval. Second one, change interval. Then third one, number of status. Number range status. तुमको कंपनी कोड डालना है इंटर क्लिक करना Change. नहीं, change भी. इंटरवल चेंज इंटरवल सेंटर वाला चेंज जो है ना ये इसमें भी यहाँ पे इंसर्ट लाइन में क्लिक कर जाता है ग्रीन 01 है हमारा अभी जो नंबर रेंज बनाना है वो 01 है ईयर 2026 है फ्रॉम नंबर
रिवर्स दस। में कॉल करके 10 901 हाँ आठ जीरो 80 कंपनी पे डिपेंड करता, ठीक है, कंपनी पे डिपेंड करता। और उसकी नंबरिंग दे दें और ये मतलब अब इसमें हम 99 डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं। 99 खाली 99 99 सिर्फ पोस्टिंग बहुत कम नहीं है 90 तो फिर नंबर एक दूसरा दो और एक दो ना तो उसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा वही तो पहले अपन डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो अपने को 10 भी हुए तो बोल दे या 20 भी हुए तो बोल दे, टेस्टिंग है ना आपको। जब मतलब कंपनी जब रियल है तब जो है लोग कंपनी एम्प्लॉयज बताते हैं आपको, मतलब उनको कितने चाहिए वो हिसाब से लेते एवरेज इतना पोस्टिंग रहता है ये हैं। उनको ईयरली यहाँ तो दे सकते, बट वेंडर में डेप्ट है कस्टमर में, आप ये नंबर रेंज कम देना, 10 20 ही देना, ज़्यादा नहीं देना। बहुत सारे जो आईडीज़ है लॉगिन्स है वो लोग क्या करें 10 लाख पूरे देते हैं, फिर आपने को नंबर देना था बनाने, तो एक बार ये नंबर यूज़ हो गया तो फिर हम ये नंबर दूसरों पे अप्लाई नहीं कर सकते ये वैसे करना चाहिए, जैसे अकाउंट बुक में नंबर दे देते हैं वैसे। डॉक्यूमेंट। हाँ तो इसीलिए क्या करो जितना हो सका कम दिए तो फिर अपने को वो नंबर रेंज बाकी के यूज़ में ला सकते फिर बाद में बोले का मतलब, ठीक है। तो एंटर प्रेस करें, सेव कर दो, एंटरप्राइज होना चाहिए उसमें। हाँ सेव कर दो, कंटिन्यू। ये नंबर रेंज हो गया। अब उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फॉर न्यू जनरल लेडजर अच्छा ये सेव का नहीं पूछा ना सर खुद से? वो नहीं पूछना, कंपनी कोड पूछा ना मैं सब स्टार्टिंग में मेरी बात तो मैं गई थी, ठीक है। नहीं ये वाली फाइल वो उसी कंपनी कोड पे ओपन करके उसमें टाइप करें ना, कॉन्फ़िगरेशन फॉर न्यू जनरल लेडजर अकाउंटिंग। नेक्स्ट मतलब ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है, ये मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट में आएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो क्लासीफाई जीएल अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, प्रीवियस के हिसाब से ये था, अब अपन जो बनाए उस हिसाब से अपने को करना है, ठीक है। अपन जो अभी बनाए उसके हिसाब से उसको रखें। जनरल लेडजर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में, जनरल लेडजर अकाउंटिंग में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में, क्लासीफाई जीएल अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जनरल लेडजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, क्लासीफाई जीएल अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। 400 अकाउंट पूछ रहा है। हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में, जनरल लेडजर अकाउंटिंग में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, चार्ट ऑफ अकाउंट आपका क्या था वो टाइप कर लीजिए। जानते भूल गए? हाँ ये न्यू एंट्री। अब 1 लाख से 3 लाख तक पूरे बैलेंस शीट में जाना है, ठीक है। 1 लाख से 3 लाख, तो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में देखो 1 लाख से 3 लाख तक जा सकते क्या? हाँ 3 लाख तक हुआ 4 लाख तक जा सकते हैं अपन। नहीं, ये एक्सपेंस है। नहीं तो मतलब 3,99,999 तक।
शेयर कैपिटल तो इसमें एडिट कर दो, यहाँ पे एडिट कर दीजिए ना, 1 लाख से 3,99,99 है ना 399 सही रेवेन्यू रेवेन्यू में चले गया। रेवेन्यू में गया। फिर ये फाइल लिए तो कंफ्यूज हो गया। वेरीफाई को कॉपी कर देंगे उसी में ऐड कर देंगे। 4 से 499 तक रेवेन्यू नहीं, एक्सपेंस, एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस। वो परचेज में आना ना, परचेज इंडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस को हम ये तो पूरा एक्सपेंस हुआ ना। लास्ट वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ। एक्सपेंस तो रेवेन्यू कौन सा था? रेवेन्यू नीचे था 5 लाख से, हाँ 5 लाख से 599। तो ये एक्सपेंस है ना। डायरेक्ट जो इंडायरेक्ट में बना है 5 लाख से 5 सेकंड अब यहाँ पर क्या दिए 1 लाख टू 4 लाख कैटेगरी ये बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से बैलेंस शीट अकाउंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर 5 लाख 4 लाख ना, हाँ फुल। हाँ 4 लाख से 5 लाख तक, यानी इसको भी अपन डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को स्प्लिट करेगा। यानी तो फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 1 लाख से 3 लाख 99,000 आप पीछे से नहीं नई फाइल में यहाँ पे फर्स्ट लाइन अपन जो चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट बनाए ना, उसमें जो नंबर रेंज अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते वो हिसाब को यहाँ पे अपडेट कर दिए। कैटेगरी में कौन सा आएगा वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद 5 लाख से 5 लाख 3,000 से लेके पहले 5 लाख का कर दीजिए। 5 लाख से लेके 5 लाख 3,000 तक। ये क्या है रेवेन्यू में 4 लाख से कितना है 4 लाख से 5 लाख 4 लाख 4 लाख और इसको क्या वैसे करना है इसमें ऊपर है ना बैलेंस शीट फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली बैलेंस शीट तो हो गई, सेकंड क्या है एक्सपेंस एक्सपेंस है 2000, उसका 3000, 5 लाख से 3000 502 999 3000 नहीं तो रेवेन्यू नीचे कर देंगे। कस्टमर को किसी यूनिट का इनकम से डिनोट कर रहे हैं इसको, कस्टमर के इनकम से डिनोट। हाँ रेवेन्यू में तो भी इनकम डिक्लेयर क्या होता ना, फिर भी कस्टमर के पास इनकम डिक्लेयर हो जाता। इसके लिए ठीक है ये एंटर से अभी भी नहीं पूछता हो क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट आप दिए हुए हैं। ठीक है नेक्स्ट डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग। इसमें चेक बॉक्सेस को अनचेक कर देना है। डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग। ये वाला फोर्थ वाला डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग। ये जो है जीरो बैलेंस के या मैंडेटरी फील्ड को चेक करता अनचेक कर देना। अभी नहीं है, अनचेक है ऑलरेडी, खाली सेव पे क्लिक करो। यहाँ पे है चेक रेट, हाँ निकालो, अनचेक होना चाहिए, अनचेक करके सेव कर दो।
तो सिलेक्टर में कुछ फीचर्स आते हैं। डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अभी कंपनी डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करके वो नहीं नहीं आ वैसा रहा। नहीं आ रहा। क्या दिया? Message text दिया। making subsequent changes to the characteristic can lead to inconsequences। कुछ तो है आगे डॉट डॉट। मतलब दूसरों को भी इफेक्ट होता होगा, प्रॉब्लम दूसरी कंपनी पे भी इफेक्ट होता तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइस मार दो। उसका मिलेगा। ठीक है, अब पोस्टिंग करेंगे। अभी पोस्टिंग करना है, लाइव जो इजी एक्सेस यूजी एक्स का F-02 डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जनरल लेजर में, डॉक्यूमेंट एंट्री में F-02 जनरल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जनरल लेजर में, डॉक्यूमेंट एंट्री में F-02 जनरल पोस्टिंग। ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर लो या फिर F-02 टाइप कर लो आप, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, और वो कर रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर अकाउंट। हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट्स F4 F2, F4 प्रेस करें तो कैलेंडर ओपन होगा, F2 से करंट डेट चूज होगी। F4 F2 हाँ तो फंक्शन होल्ड करके प्रेस करो। F4 अलग है, F2 अलग क्यों है? हाँ फंक्शन की होल्ड करके F4 प्रेस करो, F2 प्रेस करो। F4 पहले प्रेस करो F2, आज क्यों दे रहा है? वन बाय वन, नॉट बोथ एट वंस। हाँ फंक्शन के साथ फंक्शन की होल्ड फंक्शन की आई सेड होल्ड फंक्शन की और होल्ड फंक्शन की प्रेस F4। तो आज क्यों दे रहा है सब? हाँ Credit cap। देखो ये F4 प्रेस करो तो कैलेंडर ओपन हुआ, F2 प्रेस करो तो डेट सेलेक्ट हो गई। पोस्ट डेट पोस्टिंग भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट ये है, हाँ। डॉक्यूमेंट डेट, परचेज डेट या फिर बिल पे जो भी डेट है। बिल डेट। ये पोस्टिंग डेट, नाउ पोस्टिंग इन अकाउंट्स, वो डेट है। जैसे टैली में 2 बार डेट के ऊपर, वैसे ही डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, ऐसे मतलब जनरल लेजर है ये, जनरल पोस्टिंग है। शॉर्ट फॉर्म है। हाँ। मतलब जो की वो लिखा है। अभी आप देख रहे हैं ना वहाँ पे जो नंबर देखेंगे 01 हाँ, कंपनी कोड क्या है आपका? कंपनी कोड। पीरियड कौन सा है ये? जनवरी फरवरी नहीं ऐसा नहीं होता है। अप्रैल, मई, जून, जून। हाँ। देन करेंसी। आएगा। अभी डॉक्यूमेंट नंबर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, रेफरेंस जो लेना है दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट हेडर लिखना है तो लिख सकते हैं। रेफरेंस में क्या रेटिंग है? पार्टनर रेफरेंस में, अभी उसका रेफरेंस ये पोस्टिंग का कोई भी रेफरेंस है, कोई दूसरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, रेफरेंस अगर देना है, वो कर दिए, क्या बोलते हैं, रिटर्न कर दिए जो ऐसा कुछ भी हो सकता है। रेफरेंस में आपको लिंक करना है, मतलब आपको इससे उससे कनेक्शन बताना है वैसा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वो लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएंगे, तब आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन आइटम 40 बता रहा हूँ। 40 का मतलब क्या है? डेबिट फिर क्रेडिट का 50 40 मतलब डेबिट, 50 मतलब क्रेडिट। तो 40 बोल रहा है यहाँ पर, DR बोल के नहीं आता, हाँ। 40 आता। तो पोस्टिंग की बोलते हैं उसको, 40 है। तो अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करो, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट आपका आ गया, ठीक है। नहीं आया तो टाइप करो, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करो। फिर यहाँ पर आपका कैश अकाउंट कौन सा है वो सेलेक्ट करो, 1 लाख कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। हो गया। अभी यहाँ पर ये और है, इसकी जरूरत नहीं है। स्पेशल GL इंडिकेशन है, ये ट्रांजैक्शन टाइप है, हमको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है मतलब। तो आप एंटर प्रेस करो, क्या मिल सकती
यहाँ पे जो स्पेशल जीएल बोल के बता रहा वो नहीं है, और डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन टाइप भी नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे एन एंट्री इज रिक्वायर्ड इन फील्ड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। अच्छा, अपन वहाँ पे ये रिक्वायर्ड करके रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है, उसको निकाल देता हूँ मैं, उसको रिमूव करके आएंगे। ठीक है, मैं भी note कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू GUI विंडो पे क्लिक करा, यहाँ न्यू GUI विंडो पे क्लिक करा मैं, फिर उसके बाद SPRO में गए, रेफरेंस IMG में आए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्यू में आए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में आए, लेजर में आए, फील्ड में आए, फील्ड स्टेटस वेरिएंट में आए, डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट फर्स्ट वाले से भैया आपका जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है वो सेलेक्ट करवाना है, पोजीशन पे क्लिक करें, कहीं को EEFS, देन फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करें, G001 सेलेक्ट करें, फील्ड स्टेटस पे आए, सेलेक्ट करो उसको। हाँ स्टेटस ग्रुप्स स्टेटस डबल क्लिक करो उस पर, डबल क्लिक करो। हाँ फिर G001 सेलेक्ट करो, फिर फील्ड स्टेटस ऊपर है, डाटा डिटेल पे क्लिक करें, जनरल डेटा में ये टेक्स्ट को सप्रेस कर दिया, टेक्स्ट भी आ गया सर। सप्रेस कर लाना है जनरल डेटा वैसे में, टेक्स्ट भी सप्रेस में आना है। हाँ ये सप्रेस करना है, ऑप्शनल भी लग सकता है। रख सकते हो अच्छा अच्छा सर, असाइनमेंट नंबर भी सप्रेस है, आपका सप्रेस चलता कोई बात नहीं। सेव कर दो। हाँ सेव करो, अब मेरे को सप्रेस कर दो, बैक जाके आना पड़ेगा, नहीं वो एक और विंडो इसलिए नया शायद क्या लगा गया सर। वो विंडो को तो क्लोज करो कम से कम, यहाँ से आता है इजी एक्सेस को क्लोज कर दो, ये लो। हाँ ये वाले क्लोज कर दो, इसमें आ गया खाली एक बार बैक जाते हो वापस कर दो। बैंकिंग ये सब में कैश में भी करे थे शायद, बैंक में तो चलता है, बैंक से रिलेटेड नहीं है। ये करे कहीं ना उसका और किसी में कर देते एक बैंक में करते, एक जनरल में करे थे और एक मटेरियल में करे थे, पेमेंट्स में करे थे शायद। नहीं वही करो क्या लगता है, तीन दिन आएगा, तीन दिन आएगा। दो में ना सब में बिजनेस एरिया को रखे थे। हाँ, business area और रखे थे। एक में हटा दिया। ये बिजनेस हाँ, है business area दो में रखे थे। एक तो टेक्स्ट में रखे थे। ऑप्शनल है, हाँ। तो डॉक्यूमेंट डेटा टेस्ट में कुछ भी XYZ लिख नहीं होता।
डिफॉल्ट में आ रहा शब्द अपडेट हो गया ऐसा है। कंपलसरी हो गया। टाइप कर दो हेडर और रेफरेंस नंबर। हेडर बोले तो नोटेशन ही हो गया हेडर। क्या बोले तो ले लिया ना वो। हो गया 101 लिखे रेफरेंस। अगर कैंसिल कर दिया F4 F2 यहाँ से डॉक्यूमेंट कैश अकाउंट से लेकर यहाँ पर है रेफरेंस में 101 दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस में किया, एंटर प्रेस करो, ये लीजिए। 30 लाख दिया। अगर मैं 31 लाख जब एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हम वहाँ पे टॉलरेंस लिमिट पे 35 करें वहाँ पे। 35 कर दिया, 35 कर दी। 35 करेंगे ना, 35 तक मिलेगा, 36 नहीं लेगा। हालांकि हम टोटल डॉक्यूमेंट का फुल अमाउंट 550 दिए थे, मगर सिंगल लाइन के हिसाब से सिंगल लाइन 35 दिए थे, तो उतना ही लेता हूँ, इससे बढ़ के नहीं लेता। तो आप 50 के हिसाब में अगर 50 टाइप करेंगे तो नहीं आएगा, वहाँ से 50 के हिसाब में आप 50 टाइप करेंगे तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद बिजनेस एरिया, तो सुना है सर ट्रांजैक्शन रेट ऐसे कुछ भी नहीं करना। नहीं और रेफरेंस किया डॉक्यूमेंट हेड टेक्स्ट बस। और बिजनेस एरिया बेस नहीं है कौन ही बेस नहीं है अपना कौन सा ऑफिसर बिजनेस से लेकर AZ01 AZ01 बोलते हैं, कंपनी कोड के स्टार्टिंग में 2 कैरेक्टर है, फिर हम मेहंदीपट्टनम एरिया, टोलीचौकी एरिया ऐसा बनाए थे ना, तो वो चूज कर लो मेहंदीपट्टनम का। फर्स्ट वाला करना ठीक है, S1 S2 रखा कंपनी कोड के साथ। हाँ। इसके बाद फिर उसके बाद पोस्टिंग की 50, टेक्स्ट बी डैश अगर टेक्स्ट में ऑन नहीं करते इसमें अब ऑन है सेटिंग्स में और ये अब ठीक है ना पीछे नहीं गया तो बोला क्यों? करना है बोला था मैं टेक्स्ट ऑन करने का नहीं करा मैं बोला ना तो देखो नहीं सर ऑप्शनल पे डाल दिया ना इसलिए अपन सरप्लस बस सर्विस पे होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑफिस के ऑप्शन पे डालेंगे हाँ? नहीं नहीं, पोस्टर पे अभी पोस्ट पे तो नेक्स्ट में शेयर कैपिटल, अकाउंट में सर हाँ शेयर कैपिटल पोस्टिंग की तो डालना 50 ना 15 क्रेडिट ठीक है। एक सेकंड शेयर करते हैं इसमें बैग नहीं आता, आई सी दैट पोस्ट करते रहते शेयर करते हैं शो कर दिया हैं। ठीक है, एंटर। एक सेकंड मैं पूरा ले लिया वैल्यू रेट बिजनेस एरिया ले लिया ये करता है तो टेक्स्ट का मैं ऑन नहीं करा बाद में ऑन कर ठीक है एंटर अब सेकंड लाइन आई डक का अमाउंट, फर्स्ट लाइन में जो अमाउंट था सेकंड लाइन में वही चाहिए, मैं लिया मैं तो ले लिया क्या ले लिया? सेट इंटर कम से नहीं हो गया हाँ डेबिट